Hey friends, in this video we are going to study about spermatogenesis. In the previous video we have covered the definition and the basic part of gametogenesis, spermatogenesis, seasonal breeders and all-time breeders. So now let's begin with the mechanism. We know that spermatogenesis जो है, it's the formation of haploid microscopic and functional male gametes, which is the sperms from spermatogonia, also called as male germ cell. This spermatogenesis is divided into two different parts. First of all is the formation of spermatid, which is the formation of a haploid spherical round structure cell from the male germ cell spermatogonium. And the second part is differentiation of spermatozoa, in which this spermatid changes into a motile sperm structure. So the conversion of this spermatid into spermatozoa is called as spermiogenesis or spermioteliosis. So this is the second part of the mechanism in spermatogenesis. So in this video we majorly cover the formation of spermatid, which is divided into three different phases, which is first of all is the multiplication phase. The second phase is called as the growth phase, and the third phase is called the maturation phase or meiotic phase. So first let's begin with the multiplication phase. तो मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है कि जो जर्मिनल एपिथेलियल के सेल्स होते हैं, दे स्टार्ट डूइंग द रैपिड माइटोटिक डिवीजन. So those diploid cells, they start doing the rapid mitotic division, which results in the formation of spermatogonium, or also called as male germ cells. So multiplication phase involves rapid mitotic divisions of primary or primordial germ cells, that is spermatogonia. Spermatogonia are the male germ cells which is present in the seminiferous tubules of the testes. So if we see the structure of testes, this is the transverse longitudinal section of a mammalian testes. So these are the seminiferous tubules, right? And in these tubules spermatogenesis takes place. So the inner wall of these tubules consist of spermatogonia or male germ cells, and these cells undergo rapid mitotic division, and we know that these seminiferous tubules are present in the testicular lobules. So these seminiferous tubules consist of the spermatogonium, and here we can see through the diagram that how the sperm mother cell, also called as the spermatogonium, they start dividing. This is the diploid cell. So the multiplication phase involves the rapid mitosis, in which they keep on dividing and leads to the formation of spermatogonia, also called as the male germ cells. Right, now their spermatogonia, these spermatogonia or male germ cells are of majorly two different types. तो अगर हम देखें जो स्पर्मेटोगोनिया या जो मेल जर्म सेल है वो दो तरह का होता है मेजरली. तो वन इज कॉल्ड एज टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया एंड द अदर वन इज द टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया. यहाँ जो टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया है, दे एक्ट एज स्टेम सेल एंड दे गो ऑन डिवाइडिंग एंड एडिंग न्यू सेल्स, सो फॉर्मिंग ए स्पर्मेटोजेनिक लाइनेज. तो ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है स्पर्मेटोजेनिक लाइनेज का, जहाँ पर ये जो स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए के स्पर्मेटोगोनिया है, ये स्टेम सेल्स की तरह एक्ट करते हैं, टोटियोपोटेंट सेल्स की तरह एक्ट करते हैं. तो ये एक तरह की स्पर्मेटोजेनिक लाइनेज बनाने में हेल्पफुल है. जबकि जो टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया है, ये एंटर कर जाता है ग्रोथ फेज के अंदर. आफ्टर मल्टीप्लिकेशन फेज वी नो दैट ग्रोथ फेज अकर्स. तो जो ग्रोथ फेज के अंदर मेल जर्म सेल एंटर करते हैं, दे आर मेजरली टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया. नाउ अगर हम ह्यूमन टेस्टिस की बात करें, तो ह्यूमन टेस्टिस के अंदर जो है टोटल 7 डिफरेंट क्लासेस हैं स्पर्मेटोगोनिया की. Right, so there are about 7 different classes of spermatogonia which differ from each other in case of human testes. And majorly अगर हम स्पर्मेटोगोनिया की बात करें, जो मेल जर्म सेल है माइटोटिक डिवीजन से बनता है जर्मिनल एपिथेलियम से इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. दे आर ऑफ 2 different types, which is type A spermatogonia and type B. So now the next phase is called as the growth phase. So after multiplication phase, type B type of spermatogonia enters into the growth phase. Now this growth phase is characterized by spermatocytogenesis. Growth phase is characterized by spermatocytogenesis. अब स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में क्या होता है, ये जो हमारे पास मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनियम है,
ये साइज़ में बहुत इंक्रीज कर जाते हैं, मतलब कि डबल जो है इनका साइज हो जाता है ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रिटिव मटेरियल इन द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव मटेरियल ऐड हो जाता है मेल जर्म सेल्स के, जिससे कि उनका जो साइज़ है स्पर्मेटोगोनिया का वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, डबल हो जाता है। जब ये साइज़ बहुत ज़्यादा डबल हो जाता है तो उस टाइम पे जो मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनियम है उसको कहा जाता है डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। This diploid primary spermatocyte is the part of growth phase. अब ये जो डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है दिस प्रिपेयर इटसेल्फ टू एंटर मियोसिस। अब ये मियोसिस करेगा बाय द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो ये जो है ग्रोथ फेज के बारे में है। अगर हम एक चार्ट की फॉर्म में देखें, इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये जो टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया है ये एंटर कर जाएंगे ग्रोथ फेज के अंदर। और ग्रोथ फेज में क्या होता है, ये जो सेल है, जो मेल जर्म सेल है स्पर्मेटोगोनियम है, ये साइज में बहुत बड़ा हो जाता है, इससे दुगना बड़ा हो जाता है ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रिटिव मटेरियल इनसाइड द साइटोप्लाज्म, and then it forms the primary spermatocyte which is diploid in nature, and then this primary spermatocyte prepare itself to enter the meiosis by replication of DNA. अब ये जो ग्रोथ फेज है, ग्रोथ फेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज ऑफ मच शॉर्टर ड्यूरेशन देन दैट ऑफ oogenesis। फीमेल्स के केस में इनका जो ग्रोथ फेज होता है वो बहुत बड़ा होता है, जबकि मेल्स के केस में स्पर्मेटोजेनेसिस में ग्रोथ फेज जो है बहुत छोटा है, जिसमें सिर्फ मेल जर्म सेल्स जो है वो साइज में इंक्रीज करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना लेते हैं इनसाइड दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। Now the third phase is called as the maturation phase. This maturation phase is also called as meiotic phase क्योंकि meiosis होती है। So maturation phase is also characterized by meiosis. अब इसमें क्या होगा, the primary spermatocyte undergo meiosis 1 which is also called as the reductional division. Reductional division में जो नंबर है 2n का वो हाफ हो जाएगा, which means that a single primary spermatocyte undergo meiosis 1 called as reductional division to produce two secondary spermatocytes which are haploid, each containing 23 chromosomes. अगर ह्यूमंस के केस में 46 क्रोमोसोम का डबल सेट होता है, तो यहाँ पे 46 का हाफ हो जाएगा रिडक्शनल डिवीजन से 23। तो हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की फॉर्मेशन होती है मैच्योरेशन फेज के अंदर, फोर्थ स्टेप में। नाउ आफ्टर दैट दिस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इमीडिएटली एंटर्स meiosis सेकेंड which is also called as equational division, in which single secondary spermatocyte produces टू हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। और यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं तो 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनेंगे। एंड दीज स्पर्मेटिड्स 23 क्रोमोसोम है सबके पास। ये सर्कुलर स्फेरिकल शेप सेल है जो कि स्पर्मेटिड्स इनको कहा जाता है। तो यहाँ तक जो है मैच्योरेशन फेज हो जाती है। अगर हम ध्यान से देखें तो इस पूरे चार्ट में एक सिंगल स्पर्म मदर सेल, अगर ये सिंगल सेल है, यानी अगर एक सिंगल जर्मिनल एपिथेलियम या सिंगल स्पर्म मदर सेल जो कि रैपिड माइटोसिस करता है मल्टीप्लिकेशन फेज में, और एक सिंगल सेल जो है सपोज यहाँ पे आके एक सिंगल मेल जर्म सेल बनाता है, सो दिस सिंगल मेल जर्म सेल, सिंगल स्पर्मेटोगोनियम लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ टोटल 4 स्पर्मेटिड्स। यानी कि एक सिंगल जो है टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोगोनियम, जो एक सिंगल मेल जर्म सेल है, ये टोटल 4 जो है स्पर्मेटिड्स बना सकता है। और ये चारों के साथ चारों क्योंकि एक ही स्पर्मेटोगोनियम एक ही मेल सेल से अराइज हुए हैं, सो दीज 4 स्पर्मेटिड्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज क्लोन। तो इनको क्लोन कहा जाता है क्योंकि इनका जो सोर्स है वो एक सिंगल सेल है टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम, right? So this is about the maturation phase or meiotic phase which is characterized by meiosis, जिसमें meiosis 1 और meiosis 2 होती है। अगर इसको रैप अप करें पूरे टॉपिक को स्पर्मेटोजेनेसिस के, जिसमें हमने अभी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड पढ़ा है, तो हम देखेंगे कि पहले बनता है स्पर्म मदर सेल,
यानी कि जर्मिनल एपिथेलियम, वो माइटोसिस बहुत ज़्यादा होती है, रैपिड माइटोटिक डिवीजन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटेड. So this is like spermatogonium, primary spermatocyte, secondary spermatocyte and spermatids. इसमें सिर्फ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड और स्पर्मेटिड्स जो है हैप्लॉइड है, जबकि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड और मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनियम डिप्लॉइड नेचर की है. सो दिस अकाउंट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड. तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड में ये 3 चीज़ें आती हैं. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी द डिफ्रेंसिएशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, जिसमें हम देखेंगे कि जो हमने स्पर्मेटिड अभी बना हुआ देखा है वो कैसे एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर से स्पर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, विच इज़ अ वेरी मोटाइल स्ट्रक्चर एक्चुअली कैपेबल ऑफ fertilization. So I hope this video is helpful to you, and if it is, then please don't forget to like, subscribe, share, comment. Thank you.